I Jewelers, and this is a chapter of a class 8 DAB board, and I'm giving you full explanation of a question answer, horse, life skill, writing skill, and everything in Hindi. So let us start with the summary of this chapter. The summary of the chapter is the main character of the story is William Morris, and he's also a narrator, and he is working as an assistant in Rigner's ज्वेलरी शॉप. इसका मेन कैरेक्टर है विलियम मॉरिस और ये वर्क करता है असिस्टेंट के रूप में रिगनर्स ज्वेलरी शॉप में. एंड ही इज़ द पर्सन ही यूजेज हिज आइज एंड कॉमन सेंस मोर देन ऑर्डनरी पर्सन. और ये हमेशा यूज़ करता है अपना आइज और कॉमन सेंस ऑर्डनरी पर्सन से ज़्यादा, बिकॉज ही हैज़ स्टडीड ऑल लॉट्स ऑफ crime and criminals books. So every time he study the activity of people, how they talk, how they walk, how they behave, everything. One day when he opened the jewelry shop, he saw a woman was standing in the front of jewelry shop. एक दिन जब उसने ज्वेलरी शॉप खोला, उसने देखा कि एक वुमेन ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ी थी. So he observed that it was a long time she was standing in the front of a jewelry shop and she was looking into a other shop that is nothing. But after some time only, a young man, an American, entered into the shop. एक अमेरिकन उसी ज्वेलरी शॉप में एंटर कर गया and he just told him to purchase a precious ring. So he told him to show some of the rings. So William Morris, as he was assistant, he shown him some of the precious ring. At last, after finding out the rings, he selected a ring which was 300 years old. It was very antique. उसने एक सेलेक्ट किया रिंग को जो बहुत एंटिक पीस था. And the Rigners did not want to sell this ring. But this American told him that he liked the rings very much. वो उस ring को बहुत पसंद करता है. And he wanted to purchase him. But when William turned back, he hid the ring under the counter. उसने क्या किया? उसने रिंग को च्युइंगम के सहायता से काउंटर में छुपा दिया. And the ring was lost. William Morris started finding out the ring, but it was not found. ये मिला ही नहीं. Thereafter, the same woman entered into the shop to repair of a jewelry that is a brooch. उसी समय एक woman enter करती है जो बहुत देर से वहाँ खड़ी हुई रहती है. और वो क्यों आती है? क्योंकि उसे एक ब्रूच को ठीक करवाना था, फिक्स करवाना था. Suddenly, by accident, the piece of a paper fell down, in which Bruce was wrapped. उस समय क्या हुआ? वो जानबूझ करके एक पीस ऑफ पेपर को गिराती है जिसमें ब्रूच रखा हुआ था. And it was not an accident, it was a trick to take the same precious ring that was stick under the counter. But when he turned back, जैसे वो पीछे घुमा, विलियम मॉरिस को सब कुछ समझ में आ गया, बिकॉज एट द टाइम ही यूज हिज a full mind and God tried to steal the precious ring. This is only the story. And after that, we come to the question and answer. At first, understanding the story, each statement given below contains a wrong word or phrases which makes it false. इसमें रॉन्ग फ्रेज है या फिर वर्ड है दैट मेक इज फॉल्स. अंडरलाइन द रॉन्ग वर्ड एंड फ्रेजेस एंड राइट द करेक्ट सेंटेंसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड. द नरेटर ऑन्स द ज्वेलरी शॉप. नो, दिस इज रॉन्ग. द नरेटर वॉज एन असिस्टेंट एट अ रिगनर्स ज्वेलरी शॉप. सेकेंड स्टेटमेंट, द रिगनर्स सेल हाई प्राइस मॉडर्न ज्वेलरी. नो, रिगनर्स सेल्स हाई प्राइस एंटिक ज्वेलरीज, वेरी ओल्ड ज्वेलरीज. And that's why it was a famous. Third is there, the women
standing on the opposite side of the Regnus was staring at the display's jewelry. जो women खड़ी थी रिगनस के अपोजिट में, वो क्या ज्वेलरी वो देख रही थी? नो, द women standing on the opposite side of Regnus was staring at the displayed arms of a holding aces. वो उस डिस्प्ले को देख रही थी जहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एसेस था. फोर्थ वन, द नरेटर showed the American 5 trays of a ring in all. No, narrator showed American 4 trays of a ring in all. The young woman said she had come to Regnus to sell her filigree brooch. Women ने बोला कि वो आई है रिगनस को फिलिग्री ब्रूच बेचने के लिए. नहीं, the women said that she had come to Regnus to get repaired her filigree brooch. वो क्यों आई थी? वो अपने ब्रूच को रिपेयर करवाने आई थी. The women hid the flower ring in right pocket of a purse. Women ने फ्लावर रिंग को कहाँ छुपाई थी? The women hid the flower ring in the left pocket of a coat. This was the question. Answer the following questions in about 30 words each. My hobby is perhaps a little out of ordinary. What is narrator's hobby? Why does he consider it out of ordinary? narrators का हॉबी क्या है और वह इस हॉबी को ऑर्डिनरी से क्यों ऑर्डिनरी नहीं मानता है? narrators hobby is to observe people and their behavior. narrators का हॉबी है ऑब्जर्व करना पीपल को एंड उसके बिहेवियर को. ही यूजेस हिज कीन आइज एंड कॉमन सेंस मोर देन ऑर्डनरी पर्सन. वो अपना आइज़ को और अपने कॉमन सेंस को ऑर्डनरी पर्सन से ज़्यादा यूज़ करता है. और ही कंसिडर इट आउट ऑफ ऑर्डनरी बिकॉज पीपल नेवर डू सच थिंग्स लाइक ऑब्जर्विंग पीपल. ये अपने हॉबीज़ को ऑर्डनरी मानता है क्योंकि कोई भी पर्सन पीपल को ऑब्जर्व करना अपना हॉबी नहीं बनाता है. सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द नरेटर फाइंड द बिहेवियर ऑफ अ वुमन स्टैंडिंग आउटसाइड द रिगनस स्ट्रेंज? क्यों वुमेन्स के बिहेवियर जो कि ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ी रहती है उसको इसका बिहेवियर क्यों अजीब व गरीब लगा? द यंग वुमेन हु वॉज staring at the shop of an undertaker. क्योंकि वो यंग वुमेन शॉप ऑफ अंडरटेकर को देख रही थी. देयर वॉज नथिंग टू बी स्टेयर्ड एट द शॉप. वहाँ पे कुछ देखने के लिए था ही नहीं. बिकॉज द विंडो हैड 2 ounces of holding ashes of a dead on some photographable stones. क्योंकि वहाँ पे कुछ था ही नहीं. ओनली सम ऑफ द पॉट फॉर कीपिंग ashes. राख को रखने के लिए कुछ पॉट्स था और सम ऑफ द फोटोग्राफेबल स्टोन्स. और वहाँ पे क्या था? कुछ स्टोन्स का फोटोग्राफ्स था. दैट्स वाई द बिहेवियर ऑफ अ वुमेन सीम्स स्ट्रेंज टू द नरेटर. इसलिए नरेटर को बिहेवियर ऑफ अ वुमेन सीम्स स्ट्रेंज, बहुत अजीब व गरीब लगा. हियर इज हिज अराइवल एट द मोमेंट स्टक मी rather strange. Why did narrator find of a time strange? अचानक उस वुमेन को इस ज्वेलरी शॉप में एंट्री बहुत अजीबोगरीब लगा. क्यों? When the lady entered into the jewelry shop, everyone including the American was searching the flowering. जब वो एंटर की रेगनस ज्वेलरी शॉप में तो एवरी सडनली डिसअपियर फ्रॉम द ट्री. जो अचानक क्या हो गया था? लेडी ही वॉज ऑब्जर्विंग बाय द नरेटर. और वो सेम लेडी थी, वही लेडी थी जो बहुत देर तक रेगनस ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ी थी. एंड दैट्स वाई व्हेन द सेम लेडी एंटर इनटू द ज्वेलरी शॉप दैट स्टक द नरेटर्स माइंड. और उसके नरेटर्स के दिमाग में अचानक समझ में आया कि वो क्यों आई विच हर ब्रूच वॉज रैप्ड. क्या आपको लगता है कि वो जो लेडी खड़ी थी वो एक्सीडेंटली
पेपर को ड्रॉप अपने आप पेपर ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है इन द ज्वेलरी शॉप इन विच ब्रुच वॉज रैप्ड, जिसमें ब्रुच लपेटा हुआ था वो क्या अपने आप से गिर जाता है? वाई? अगर नहीं तो वो क्यों नहीं? द लेडी इंटेंशनली ड्रॉप्ड, उसने क्या की? इंटेंशनली ड्रॉप की द पेपर इन विच ब्रुच वॉज ड्रॉप्ड। वो एक्सीडेंटली नहीं ड्रॉप हुआ था, उसे लेडीज़ ने इंटेंशनली ड्रॉप किया। एंड इट वॉज अ ट्रिक when the narrator bent down to take up the paper, जैसे वो नरेटर और विलियम मॉरिस झुकता वो पेपर को उठाने के लिए, एट द सेम टाइम शी पिक्ड अप द फ्लावर रिंग, उस समय वो क्या की? उस फ्लावर रिंग को, प्रीसियस फ्लावर रिंग को उसने पिक कर लिया, उठा लिया। विच वॉज प्लेस एट द एज ऑफ अ काउंटर विद द हेल्प ऑफ च्युइंगम, जो कहाँ पे चिपका हुआ था? काउंटर पे चिपका हुआ था विद द हेल्प ऑफ अ च्युइंगम। फिफ्थ क्वेश्चन, where did the narrator find the ring from and how did he know it would be there? नरेटर ने रिंग को कहाँ से पाया और उसको कैसे पता था कि वो रिंग लेडीज़ के पॉकेट में है? द नरेटर फाउंड द रिंग फ्रॉम द यंग लेडी, नरेटर ने कहाँ से मिला उसको रिंग? यंग लेडी के पास से। सी केप्ट इट इन द लेफ्ट पॉकेट ऑफ अ कोट, उसने कहाँ रखी थी? अपने लेफ्ट पॉकेट, कोट के लेफ्ट पॉकेट में रखी थी। ही केम टू नो अबाउट बाय हिज यूजिंग हिज कॉमन सेंस, वो उसको पता कैसे चला? बिकॉज ही ऑलवेज यूज कॉमन सेंस दैट यंग लेडी हैज़ क्लेवरली यूज अ लेफ्ट हैंड, क्योंकि यंग लेडी ने अपने लेफ्ट हैंड से उस रिंग को काउंटर से ले लिया था। सी अराइव्ड आफ्टर द फ्लावरिंग हैड डिसअपीयर, और वो उस समय पहुंची जब फ्लावरिंग गायब हो चुका था, मिस्ड हो चुका था। देन सी प्लेड अ ट्रिक एट ड्रॉपिंग द पेपर एंड दैट अलाउड द नरेटर टू कंबाइन ऑल इंसिडेंट टुगेदर, और उसमें वो एक ट्रिक लगाई। उसमें क्या की थी? उसने एक पेपर को गिराया और इन द सेम वे एंड व्हेन द नरेटर कंबाइंड ऑल द इंसिडेंट, जब नरेटर ने सभी का इंसिडेंट को कंबाइंड किया, सो सी कम टू नो दैट सी हैड सर्टेनली टेकन द फ्लावर रिंग। Question number C. William Morris noticed certain things about the American and the young lady that put them under suspicion, finally helped him in solving the mystery of missing ring. Complete the web chart below by filling the blurbs, the observation and the narratives made about the two. The picture is there. यहाँ पे दो पिक्चर है। एक पिक्चर है दैट अ वुमेन के लिए, द यंग वुमेन की, और एक और पिक्चर है सो दैट सम ब्लब्स आर देयर एंड यू हैव टू राइट डाउन द लाइन्स। फर्स्ट लाइन इज सी इंटेंशनली ड्रॉप द पेपर इन विच ब्रुच वॉज रैप्ड, उसने जानबूझ के गिराया था उसी पेपर को जिसमें कि ब्रुच लपेटा हुआ था। सी केप्ट स्टेयरिंग एट द अंडरटेकर शॉप फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसने क्या की थी? बहुत देर तक अंडरटेकर्स के शॉप को देख रही थी। ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द ज्वेलरी, और वो जो अमेरिकन था वो कुछ नहीं जानता था ज्वेलरी के बारे में। ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द ज्वेलरी। सडनली ही स्टॉप्ड च्यूइंग द गम आफ्टर रिंग डिसअपीयर्ड फ्रॉम द ट्रे इफ ही डिड नॉट मूव, और सडनली क्या हो गया? स्टॉप च्यूइंग, और अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? उसने चबाना रोक दिया, और आफ्टर दैट द रिंग डिसअपीयर्ड। What impression do you form of a William Morris? किस तरह का इम्प्रेशन आपके दिमाग में बनता है बाय सीइंग द विलियम मॉरिस? विलियम मॉरिस इज़ एन इंटेलिजेंट मैन, वो बहुत इंटेलिजेंट है। ही ट्रूली ऑब्जर्व द थिंग्स अराउंड, वो क्या करता है? हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है। द यंग लेडी वॉज स्टेयरिंग एट अंडरटेकर शॉप, यंग लेडी कहाँ पे खड़ी थी? अंडरटेकर शॉप के सामने। विच सीम्स स्ट्रेंज टू द नरेटर, और वो क्या लगा? अजीब सा लगा उसे। बट मोर देन हिज इंटेलिजेंस विलियम मॉरिस इज कॉमन सेंस, अपने इंटेलिजेंस से ज़्यादा उसने कॉमन सेंस को यूज़ किया। हिज कॉमन सेंस एंड कीन आइज हेल्प हिम टू अरेंज ऑल द इंसिडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, उसका कॉमन सेंस और उसको मदद किया
कि सभी इंसिडेंट, जो भी इंसिडेंट हुआ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड, वो कंबाइन करने में. He observed people rightly. He noticed that in the very beginning, the American having chewing the gum, और सबसे पहले में क्या था, वो अमेरिकन गम को च्वी कर रहा था, चबा रहा था in his mouth. But after some times, when the flowering disappeared, he stopped chewing gum. Just after the flowering was found missing. In a horse में आ गया. Intelligence is using common sense to the full. Discuss with reference to the story. It is well accepted saying that intelligence is using common sense to the full. अगर आप common sense को पूरी यूज़ करते हैं तो आप क्या बनते हैं? Intelligent. The main character of the story, William Morris, uses his eyes and common sense more than us. मेन कैरेक्टर कौन है? विलियम मॉरिस है, जो हम अपने आइज़ को और कॉमन सेंस को हम लोग से ज़्यादा यूज़ करता है. एंड ही मेक्स डीप स्टडी ऑफ अ क्राइम एंड क्रिमिनल्स, और उसने बहुत से बुक पढ़े हैं क्राइम एंड क्रिमिनल से. दैट्स व्हाई ही नो हाउ टू यूज हिज कॉमन सेंस एंड आइज मोर देन अस. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेट, और ये जो क्वालिटी है, विद द ट्रेट ही इज़ एबल टू फाइल रॉबरी बिड एट द रिगनस शॉप. ठीक है. और विद दिस a trait, with this quality, he just foil robbery. और इससे क्या हुआ? वो जो रॉबरी होने वाला था, सो उसको उसने रोक दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. बट शी वॉज नॉट वेयरिंग ब्लैक और एनी साइन ऑफ अ मॉर्निंग. यहाँ पे मॉर्निंग का मतलब होता है शो करना. वाई इज ब्लैक कंसिडर्ड टू बी द साइन ऑफ अ मॉर्निंग? आपको क्यों लगता है कि ये जो ब्लैक है वो shows to be the sign of a morning? Because in the particular reason, like Christian, especially in the Christian world, it is believed that we pay homage to departed soul by wearing black clothes. आपको पता ही है कि क्रिश्चियंस क्या करते हैं, और वो ब्लैक पहन करके जो डिपार्टेड सोल को होमेज पे करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं. That's why this black is considered to be the sign of morning. B. Why do you think some people wear white also for the same reason? Some people wear white also for the same reason, because it is considered pious and we are able to remember the departed soul by thinking of his deed. Sometimes we wear white, sometimes हम लोग क्या करते हैं? वाइट पहनते हैं फॉर द सेम रीज़न. उजला भी हम लोग पहनते हैं फॉर द सेम रीज़न. बट ये इसलिए वो पायस है, पवित्र है, क्योंकि वी आर एबल टू रिमेंबर द डिपार्टेड सोल, क्योंकि हम लोग उसको पहन करके डिपार्टेड सोल को याद करते हैं एंड थिंकिंग अबाउट हिज वर्क, और उसके वर्क के बारे में सोचते हैं. शुड कलर बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस और हार्ट फिल्ड फीलिंग्स? क्या आपको लगता है कि ये कलर से ही कलर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए या फिर फीलिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए? इट इज़ सर्टेनली दैट हार्ट फील्ड फीलिंग वी शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस. कपड़े को या फिर कलर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, ये हार्ट फील्ड फीलिंग्स को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए. नो मैटर व्हाट कलर यू वेयर, इट इज़ अ फीलिंग दैट यू कीप फॉर द पर्सन दैट मैटर्स द मोस्ट. इसीलिए जो भी हम फीलिंग करते हैं किसी के बारे में, that should be given the more importance. Life skill. Why did William Morris make a sign to Miss Suskind before speaking to the American about the flowering? विलियम मॉरिस ने मिस्टर सस्किंड को इशारा क्यों किया था? William Morris made a sign to Mrs. Suskind before speaking to American about the flowering. He asked her to come and stand beside him so that she can keep a watchful eyes on him. विलियम मॉरिस ने सस्किंड को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो उसके जगह पे आती और वो प्रॉपर आइज़ या प्रॉपर ऑब्जर्व करता अमेरिकन को. Why was it important to conduct a thorough search on American before reporting the matter to the insurance company? ये क्यों ज़रूरी था कि ये थोरो सर्च पूरी अच्छी तरह से सर्च करना, खोजना, खोजबीन करना
बिफोर गिविंग दिस मैटर द इंश्योरेंस कंपनी को ये मैटर देने से पहले क्यों थोड़ा सर्च करना जरूरी था. बिफोर रिपोर्टिंग द मैटर टू द इंश्योरेंस कंपनी, it was very important that staff at the Rignas does the thorough search, because blaming someone without a proof would be detrimental to the company. अगर आप किसी को बिना सर्च किए हुए ब्लेम करेंगे, दोषी देंगे, तो क्या होगा इससे? Really it will just degrade the name of a company. Why were the American and his accomplice not handed over to the police? अमेरिकन और उसके कंप्लिस को, उसके फ्रेंड को, उसके पार्टनर को पुलिस को हैंड ओवर क्यों नहीं किया? American and his accomplice were not handed over to the police because William Morris noticed that they were very frightened. विलियम मॉरिस ने नोटिस किया वो बहुत डर गया था, एंड नर्वस, एंड हैज पिटीड देम, और उसको दया आया उस पर, इसलिए विलियम मॉरिस ने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द राइटिंग स्किल. इमेजिन योरसेल्फ टू बी द यंग lady Larry interrogating how jealous vigilant assistant filed your well-made plan to steal the ring. आप कौन हैं? आप हैं young lady. Or you are writing your heartfelt feelings that happened on that day when a jealous assistant ने आपके प्लान को फाइल कर दिया. सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एट फर्स्ट द डेट एंड डे, एंड आफ्टर दैट अ टाइम, यहाँ पे टाइम एंड डेट. Then we will start writing with what you felt about the day. Really it was a unlucky day for him. ये कैसा डे था? Very unlucky day. It was for me and my friend. हम दोनों के लिए बहुत unlucky day था. I along with my friends made a solid plan to steal a ring from the Rigners. हमने अपने फ्रेंड के साथ में बहुत अच्छा प्लान बनाया एक रिंग को चोरी करने का. I decided to stand at the opposite of the shop. मैंने क्या किया था? एक शॉप के अपोजिट में मैं बहुत देर तक खड़ी थी. My friend went inside and he managed to steal the ring. और मेरा फ्रेंड इट मीन्स अमेरिकन went inside, वो अंदर गया और he just managed to steal the ring. According to our plan, he had stuck the ring with help of chewing gum. उसने क्या किया? चिपका दिया था रिंग को chewing gum की मदद से. And he parted at the edge of the counter, और वो उस काउंटर से अलग हो गया था. I went there after some time. थोड़ी देर के बाद मैं गया. Pretend that customer to get my brooch repaired, और मैंने ब्रूच को रिपेयर करने गई. Then cleverly I threw the paper on the floor, और मैंने क्या किया? अच्छी तरह से एक पेपर को नीचे गिरा दिया. Assistant took it up at the same time. जैसे ही उस असिस्टेंट ने उसने उठाया, I took the ring, put it in my left pocket of my coat. और जैसे ही वो झुका, मैंने रिंग निकाल के मैंने अपने लेफ्ट पॉकेट में रखा. But I never imagined about keen eyes of assistant. बट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि असिस्टेंट इतना तेज हो सकता है. He saw the mark of a chewing gum while picking up the paper. उसने chewing gum के मार्क को देखा जब उसने पेपर को उठाया. Stopped me. I had no other choice. मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था. And giving him the ring back, and I ran back to my skin. और मैं डर गई बहुत, और उस ज्वेलरी शॉप को छोड़ के भाग आई. This is the feeling of that young lady. And that's all of this story. Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe my channel. Thank you once again.